Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 5 of CBSE course from unit number 2, and the name of the prose is Flying Together, which is written by Shiva Kumar. It is a story which is adapted from stories from Panchatantra, a wise old bird. तो ये जो हमारा स्टोरी है फ्लाइंग टुगेदर, ये स्टोरी पंचतंत्र के स्टोरीज में से एक स्टोरी है और इसी का एक एक्सट्रैक्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। ये पंचतंत्र के स्टोरी से अडेप्टेड हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. What happened when you did not do as they asked you to do? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें पूछा जा रहा है। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ एडवाइस देते हैं रोज कि यू हैव टू डू योर होमवर्क। जैसे ये स्कूल से रिटर्न आते हो आफ्टर हैविंग योर लंच एंड लिटिल रेस्ट, you have to, first thing you have to do is you have to complete the homework, and second thing you have to complete the course of study which is taught in your school. और क्या बोलते हैं पेरेंट्स कि यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि अगर आप जल्दी उठोगे तो आप जल्दी से रेडी होकर टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। पैक योर बैग, और क्या बोलते हैं पैक योर स्कूल बैग। अगर कल स्कूल है तो आज रात ही स्कूल बैग पैक कर लेना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें कुछ एडवाइस देते हैं कि होमवर्क टाइम पे कर लेना चाहिए, बैग टाइम पे पैक कर लेना चाहिए, अपने चीज़ों को अरेंज्ड मैनर, एक टाइडी मैनर में रखना चाहिए ताकि हम उसको ढूंढते ही हमें मिल जाए अगर हमें उसका लोकेशन पता हो तो हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कुछ एडवाइस करते हैं। तो फ्लाइंग टुगेदर इज अ स्टोरी विच is about a flock of geese and how they managed themselves to escape. So, Flying Together is a story about flock of geese and how they managed to escape themselves from an hunter altogether. This story consists of a wild old goose who helps all this flock of geese to escape from the hunter. This story basically teaches all of us that we have to take care of our problems and we have to solve our problems when they appear to be very small and insignificant. This story also teaches us the importance of wisdom and experience. So, let us learn the story Flying Together in detail. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. "Do you see that creeper?" he said to them. "Let us destroy it." "Why must we destroy it?" asked the geese in surprise. "It is so small. What harm can it do?" "My friends," replied the wise old bird, "that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong." "What of that?" asked the geese. "What harm can a creeper do us?" "Don't you see?" replied the wise bird. "With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all." "Well, there is no hurry," they replied. "The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now." "Destroy the creeper while it is still young," the old bird advised. "Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it.
we will see, answered the birds. But they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Deep in a forest stood a very tall tree. तो जंगल के एकदम अंदरूनी हिस्से में, एकदम जंगल के भीतर एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था, एक टॉल ट्री था, एक विशाल सा पेड़ था. Its leafy branches spread out like strong arms. और उस ट्री के ब्रांचेस चारों ओर फैले हुए थे. उसके जो ब्रांचेस बहुत बड़े बड़े थे और चारों ओर फैले हुए थे. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of flock of wild geese. तो ये ट्री किसका घर था? ये पेड़ पे बहुत सारे वाइल्ड गीस रहते थे. गीस है प्लूरल फॉर्म गूस का. गूस है सिंगुलर फॉर्म यानी एक गूस. गीस है बहुत सारे गीस. तो गूस क्या है? ये एक बर्ड है जिसका नेक लंबा होता है, इसके शॉर्ट लेग्स होते हैं और इसके फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं. तो ये जो पेड़ पे कौन रहता था? पूरा झुंड रहता था. किसका? गीस का. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was a home of flock of wild geese. They felt shape that one of the geese was a wild old bird. उस पेड़ पे इन सारे बर्ड्स को, इन सारे पक्षियों को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस होता था. बिकॉज द ट्री वॉज वेरी टॉल. एक तो बहुत टॉल था, ऊपर से उसके ब्रांचेस वाइड स्प्रेड थे और ये टोटल उनका फैमिली जो ग्रुप ऑफ गीस था सारे ये पेड़ पे रहते थे. तो इन्हें इस पेड़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता था और बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता था. उन्हीं के ग्रुप में एक वाइज ओल्ड बर्ड रहता था. उन्हीं के ग्रुप में एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बूढ़ा बर्ड जो कि गूस, उनके साथ उनके झुंड में रहता था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. ये जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने क्या नोटिस किया? उसने वो जो टॉल ट्री के पूरे नीचे वाले हिस्से में उसने देखा कि एक छोटा सा क्रीपर आ रहा है. एक छोटा सा क्रीपर उठ रहा है. क्रीपर यानी लता. क्रीपर क्या करते हैं? दूसरों पेड़ों के ऊपर वो लेटते हुए खुद को क्रीप करते हैं. क्रीपर यानी लता. तो ये वाइज ओल्ड बर्ड एक दिन क्या करता है? टॉल ट्री के एकदम नीचे एक क्रीपर को नोटिस करता है. He spoke to the other birds about it. ये वाइज ओल्ड बर्ड ने अन्य जो बर्ड्स थे, पक्षा थे उस पेड़ पे, उस क्रीपर के बारे में उस वाइल्ड ओल्ड बर्ड ने इन सारे पक्षियों से चर्चा किया. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. तो वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला, Do you see that creeper? वो क्रीपर को देख रहे हो ना, जो जस्ट अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है. चलो लेट अस डिस्ट्रॉय इट. सभी मिलके उसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते, उसको पूरा नाश कर देते, उसको उखाड़ देते हैं. वरना वो क्या करेगा? एकदम क्रीप होते जाएगा. Why must we destroy it? asked the geese in surprise. तो बाकी जितने भी झुंड में अन्य पक्षियां थी इस वाइल्ड ओल्ड गूस को छोड़ के, उन्होंने बोला Why must we destroy it? वो बेचारा तो अपने आप इतना छोटा है, वो अभी उठा है, उसको मतलब उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? उसको डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत है? ग्रुप में जो अदर गीस थी
वो सारे क्वेश्चन करने लगे वाइज ओल्ड बर्ड से। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? वो सभी बोलने लगे कि वाइज ओल्ड बर्ड को इतना छोटा है, वो हम सबको क्या ही नुकसान कर सकता है। My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and stronger. तो उस वाइज ओल्ड बर्ड ने ये समझाया, अरे दोस्तों, ये क्रीपर बहुत ही जल्दी क्रीप करते ही रहेगा वो टॉल ट्री से, और जितना वो क्रीप करेगा वो उतना ही ज़्यादा मोटा होगा साइज में और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर हम जल्दी इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक होके पूरा टॉल ट्री को क्रीप करते जाएगा। What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? तो बाकी जितने भी गीज थे, जितने भी ग्रुप में पक्षियाँ थे, वो बोलने लगे कि इससे क्या होगा, वो अपना क्रीप करेगा टॉल ट्री को और बढ़ते जाएगा, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो या बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, वो लता, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको बढ़ने दो। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of the creeper it will be possible for someone to climb the tree. A hunter can come up and kill us all. तो वो वाइज ओल्ड बर्ड बोलती है, डोंट यू सी, तुम सभी को दिखाई नहीं देता क्या, अगर ये क्रीपर ऐसे ही क्रीप करता जाएगा, ये तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, और जितना जल्दी हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटा होगा, और ये क्रीप करते करते वो टॉल ट्री के ब्रांचेस तक जब पहुंच जाएगा तो किसी भी हंटर को ये क्रीपर हेल्प करेगा क्लाइंब करने के लिए। तो तुम सभी को समझना चाहिए कि इसको अभी ही डिस्ट्रॉय करना चाहिए, वरना फ्यूचर में अगर कोई हंटर आएगा और देखेगा कि इतना अच्छा मौका है पेड़ को चढ़ने के लिए, तो वो ज़रूर ये क्रीपर को यूज़ करेगा। तो इसी को अभी डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be pity to destroy it now. तो सारे फिर से वाइज ओल्ड बर्ड को रिप्लाई देने लगते हैं, सारे पक्षियाँ, ठीक है, आप जो बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, लेकिन अभी ये जो क्रीपर है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है, और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम इसको अभी डिस्ट्रॉय करेंगे। इट वुड बी पीटी मतलब सैड, टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। लेकिन ओल्ड बर्ड ने एडवाइस किया, ये क्रीपर जब छोटा है तभी डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये क्रीपर जितना बढ़ेगा, जितना ग्रो करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग और थिक होगा। Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. Wise old bird बोलता है, goose बोलता है कि now it is tender. Tender का मतलब एकदम soft. Now it is very soft. ये बहुत ही soft है अभी हम इसे easily destroy कर सकते हैं, इसे easily हम हटा सकते हैं। Later ये हमारे लिए बाद में क्या होगा? It will be very hard for us. अगर बाद में हम इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, जब वो बढ़ गया होगा, हमारे लिए ये टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो अच्छा यही होगा कि हम इसको अभी ही डिस्ट्रॉय कर दे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। तो बाकी जितने भी बर्ड्स थे, वाइल्ड ओल्ड गूस को छोड़ के, उन्होंने रिप्लाई दिया उस इंटेलिजेंट वाइज बुद्धिमान बर्ड को कि अभी छोटा है, ठीक है, अभी इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही गलत बात है। देखते हैं, डिस्ट्रॉय तो करेंगे लेकिन अभी वो बहुत छोटा है। वी विल सी, हम बाद में देखते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने का। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। और कुछ ही दिनों के बाद ये सारे पक्षियाँ वाइज ओल्ड गूस का दिया हुआ एडवाइस एकदम से भूल गए। और क्या हुआ, तुरंत कुछ ही दिनों में ये जो क्रीपर था एकदम
ट्री को क्रीप करते हुए एकदम टॉप पे पहुंच गया, यानी ट्री के लोअर पोजीशन से लेके अभी मेन स्टेम के ऊपर पोजीशन तक वो क्रीपर पहुंच चुका है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। अभी जो लता यानी क्रीपर का प्रेजेंट कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, यानी अभी इसको डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन क्या होता है, एक सुबह जब ये सारे गीज गए थे अपना खाना ढूंढने के लिए, वही सुबह उस पेड़ के पास एक हंटर पहुंचता है, एक शिकारी पहुंचता है। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो वो खुद से बोलने लगता है, अच्छा ये वो जगह है जहाँ पे जो बर्ड्स है वाइल्ड गीज यहाँ पे रहते हैं। जब शाम तक वो वापस घर आ जाएंगे, मैं उन सारे वाइल्ड गीज को ट्रैप कर लूँगा, पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top. हंटर क्या करता है, उस क्रीपर के मदद से वो ट्री पे क्लाइंब करता है और पूरा टॉप पे पहुंच जाता है और ब्रांचेस तक पहुंच जाता है। ब्रांचेस तक पहुंचने के बाद एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वहाँ पे उन ब्रांचेस पे वो अपना क्या बिछा देता है, अपना जाली, अपना नेट बिछा देता है। Then he climbed down and went away. उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतरता है और वहां से चल देता है। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. तो जब शाम होता है, ये सारे बेचारे वाइल्ड गीस का जो झुंड है वो सुबह से लेके शाम तक खाना ढूंढ के थक गया है, और जब वो शाम के समय वापस आ रहे होते हैं, इतना थके हुए होते हैं कि वो नोटिस नहीं कर पाते, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ब्रांचेस पे किसी ने जाल बिछाया हुआ होता है। As they flew into the tree, they were trapped. और जैसे ही वो ट्री के ब्रांचेस में रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, वो जाली उनको ट्रैप कर लेता है, वो नेट उनको एकदम से ट्रैप कर लेता है। They struggled hard to get out, but could not. वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उस नेट से, उस जाली से बाहर निकल जाए और आज़ादी पा ले, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ये नहीं होता, वो उस जाली में ही ट्रैप होके रहते हैं। Now let us learn the remaining part of the prose flying together in detail. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? तो ये जो सारे पक्षियाँ थे ट्रीज में, वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि बचाओ, हेल्प हेल्प, वी ऑल आर कॉट, हम सारे ये जाल में फंस गए हैं। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। फस क्या, यानी थिंकिंग अबाउट समथिंग विदाउट नो रीजन। अभी वाइज बर्ड बोले जो होना था वो हो चुका है, पहले तो तुम सुने नहीं, अभी बात का बतंगड़ मत बना। डोंट मेक ए फस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। लॉन्ग लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। बहुत समय पहले मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि ये जो क्रीपर है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन तुम में से कोई भी मेरा बात नहीं सुना। Now see what happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. अब देखो क्या होगा, कल सुबह वो जो शिकारी है वो आएगा, the hunter will come, और हम सभी को मार देगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry, we did not listen to you. तो बाकी जितने भी पक्षियाँ थे, वाइल्ड ओल्ड गूस को छोड़ के, वो बोलने लगे, हम सारे मूर्ख थे, हम सारे मूर्ख थे कि हमने आपकी बात को ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज किया आपकी बातों को। अब हम क्या करेंगे? सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपका बात नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, प्लीज़। वो वाइज ओल्ड गूस को बोलते हैं कि अब आप ही बताइए कि हम क्या करेंगे।
Then listen carefully, replied the wise bird. तो वो wise bird, वो जो सबसे बुढ़ा पक्षी जो होता है, जो बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होता है, वो पक्षी अन्य पक्षियों को बोलता है, ध्यान से मेरे बात को सुनो. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो शिकारी आएगा, तुम सबको ऐसे एक्टिंग करना पड़ेगा जैसे कि तुम ऑलरेडी मर चुके हैं. You must all pretend to be dead. Pretend मतलब एक्ट करना. Just lie still. The hunter will not want dead birds. एकदम सुन्न पड़ के लेटे रहना, हिलना नहीं. तो हंटर को लगेगा कि सारे बर्ड्स मर चुके हैं. हंटर को डेड बर्ड्स चाहिए ही नहीं. वो मरे हुए बर्ड्स को क्या करेगा? He will throw us to the ground. वो एक एक करके वो डेड बर्ड्स को नीचे फेंकना स्टार्ट करेगा. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. तो डेड बर्ड्स को वो एक एक करके नीचे फेंकेगा, उसको नीचे उतरने की भी सुविधा होगी. फिर एक एक को नीचे उठा के अपने बैग में डालेगा, फिर आराम से घर को चले जाएगा. When the last one of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से लास्ट बर्ड को नीचे फेंका जाएगा, हमें नीचे फेंका जाएगा, तो हम सबको एक साथ मिलके उड़ जाना है. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो हंटर आता है पेड़ के पास और क्रीपर के मदद से पेड़ पे चढ़ जाता है. He looked at the geese in the net. They all are dead, he muttered. तो वो नेट में देखता है कि जितने भी गीज हैं सारे डेड हैं. वो बोलते हैं ओह दे ऑल आर डेड, ही मटर्ड. मटर्ड का मतलब फुसफुसाना बोलता है धीरे से. दे ऑल आर डेड, ये सभी तो मर चुके हैं. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. वो एक एक करके वो बर्ड्स को नेट के बाहर नीचे फेंकता है. द बर्ड्स ले स्टिल until the last one had been thrown down. ये बर्ड्स जो थे एकदम नीचे फेंकने के बाद एकदम स्टिल, हिले डुले नहीं, एकदम सुन्न पड़ के पड़े थे. Until the last one had been thrown down. जब तक वो लास्ट बर्ड को फेंका नहीं गया था, ये सारे बर्ड्स नीचे गिरने के बाद कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, एकदम स्टिल गिर रहे थे. Then all at once they got up, flapped their wings. तो क्या होता है उसके बाद लास्ट वाले बर्ड को जब फेंका गया, all at once flap their wings. हर कोई अपने विंग्स को ऊपर नीचे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में फ्लैप करता है और उड़ जाते हैं. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese. The hunter was taken by surprise. हंटर एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या हो गया, ये तो मरे हुए थे, कैसे उड़ के चले गए. और वो पेड़ के ऊपर बैठ के ये नीचे दृश्य भी देख रहा है कि ये सारे गीज उसके सामने से ही गायब हो गए और ये गीज जो थे हंटर को बुद्धू बना दिया. नाउ लेट अस लर्न सम ऑफ द न्यू वर्ड्स व्हिच वी केम अक्रॉस व्हाइल लर्निंग द प्रोज फ्लाइंग टुगेदर. गीज प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फूटेड बर्ड. तो गूज यानी सिंगुलर, गीज यानी प्लूरल बहुत सारे. तो लार्ज वेब फूटेड बर्ड, तो गूज क्या होता है, उसका जो फूट होता है वेब फूटेड होता है, ठीक है, और उसके थिन लेग्स होते हैं. और ये बर्ड का नेक क्या होता है, लॉन्ग भी होता है. गीज प्लूरल फॉर गूज. क्रीपर, प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और ए ट्री. क्रीपर क्या होता है, एक प्लांट जिसको यूजुअली सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो दूसरे ट्री का सपोर्ट लेता है या किसी वॉल का सपोर्ट लेता है. तो क्रीपर में कौन कौन आ जाता है, हमारे पान का पेड़ वो एक क्रीपर है, वो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेता है या वॉल का सपोर्ट लेता है ग्रो करने के लिए. और एक हो गया काली मिर्च का पेड़, वो भी एक क्रीपर है. ग्रेप्स, ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेते हैं ग्रो करने के लिए, क्रीप करने के लिए. वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. वाइंडिंग का मतलब होता है गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, यानी ऐसे मूवमेंट. मटर्ड, स्पोकन इन ए लो टोन, यानी फुसफुसाना, बहुत ही धीमी आवाज में बात करना, ताकि बहुत ही लो टोन में बात करना ताकि बगल वाले को सुनाई नहीं दे. स्पोकन इन ए लो टोन. फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन.
फ्लैप्ड का मतलब मूव विंग्स अप एंड डाउन. तो फ्लैप का मतलब अपने पंखों को ऊपर और नीचे का मूवमेंट देने को बोलते हैं फ्लैप. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोज ऑफ क्लास 5 फ्लाइंग टुगेदर. Learn the story thoroughly. If you like the story, give it a like. And if you're watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get latest notifications related to educational content of West Bengal Board, Odisha Board, CBSE and ICSE courses. Until then, keep learning and keep sharing. Thank you.